मैम शुरू करें क्योंकि 8:35 हो चुका है तो शायद लोग आते जाएंगे। आपका पीछे कोई कमिटमेंट है सुजाता जी? No, by 9:35 if I'm okay with 9:35, 9:40. ओके, तो मेरे हिसाब से वी शुड स्टार्ट नाउ। Okay, yeah. So hello and good evening, dear friends and family. Once again, I, Lina Doshi, welcome you all on the 87th program from the platform of Let's Grow Together. दोस्तों ये कहते हैं तो आपको ग्लोबल ग्रांट के तरीके में आपको मदद कर सकते हैं। सुनीता जी, आप अपने एंड से अपने आप को सिर्फ अनम्यूट करिएगा, मैं सबको म्यूट कर रही हूँ। दोस्तों ये कहते हैं कि साउंड इज अ वोकेबुलरी ऑफ नेचर। साउंड यानी कि ध्वनि एक प्रकार का कंपन है जो किसी ठोस द्रव्य या गैस से होकर संचारित होती है, यानी कि साउंड इज अ वाइब्रेशन that travel through the air or another medium and can be heard when they reach a person's or animal's ear. साउंड के बारे में कुछ बातें हैं, जैसे कि शंख फूंकने से हवा शुद्ध होती है, यानी कि शंख के साउंड से वातावरण में मौजूद जीवाणु या कीटाणु का नाश होता है। कुत्ते मनुष्य की तुलना में हाई फ्रीक्वेंसी से साउंड को सुन सकते हैं। जो आवाज मनुष्य नहीं सुन पाते हैं वो आवाज कुत्ते सुन लेते हैं। किसी खतरे की आशंका होने पर जानवर आवाज द्वारा दूसरे जानवरों को आगाह कर देता है। अंतरिक्ष में भी विविध आवाज यानी कि साउंड मौजूद है। NASA also has recorded sound of a sun and it sounds like Om. शायद इसीलिए हम सूर्य की पूजा भी करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपने 4 वेदों में सामवेद को बहुत ही महत्व दिया है। इनफैक्ट in Bhagavad Gita, Lord Krishna has described the Samveda is the most important of all the Vedas. It believes that the glorious Lord and Brahma are attainable only through devotion and musical chanting. The first sound was recorded as a spices was gathered by a device called phonotograph. I may mispronounce it, but yeah, some instrument in 1857, and in 1875, Alexander Graham Bell transmitted the first sound vibrations between 2 receivers. Sound massage therapy का इतिहास भी 5000 साल पुराना है, जिसमें ध्वनि के जरिए आपको आराम मिलता है और शरीर में नई एनर्जी महसूस होती है और आप पहले से कई गुना ज्यादा बेहतर महसूस करते हैं। कहते हैं साउंड विल बी द मेडिसिन फॉर द फ्यूचर। तो सही मायने में एक खुशहाल जिंदगी के लिए साउंड कैसे उपयोगी है और इसके इर्द गिर्द की सारी बातें आज हम जानेंगे डॉक्टर सुजाता सिंगी जी से। डॉक्टर सुजाता ने हमारे बीच में पहले भी एक बार रिक्लेम योर रिचेस का सेशन लिया है। काफी सारे लोग इन्हें जानते भी हैं, पर नए जॉइनर्स के लिए एक बार उनका परिचय फिर देना चाहूंगी। डॉक्टर सुजाता सिंगी MBA नेशनल टॉपर विथ मेजर्स इन फाइनेंस एंड मार्केटिंग, इंटरनेशनल बेस्ट सेलर ऑथर, स्पीकर, ट्रेनर, Vedic business and corporate leadership expert, corporate wellness facilitator, sound and spiritual coach. Trained over 3 lakhs plus students, teachers, principals, professors at various schools, colleges, universities on the concept of self-leadership and value education over past 20 years. Also speaker on women empowerment, economic empowerment with skill development. Has received various national and international awards in the field of life skill education, leadership, sound and spiritual science. She has been trainer for the IRS and IAS officer on ethical and moral leadership.
She possesses 5-time doctorate in the field of life skill education, NLP, wellness, sound and spirituality science, and humanities. So, dear friends and family, I am honored to welcome outstanding speaker, Dr. Sujata Singhi ji. सुजाता जी, लेट्स ग्रो टुगेदर के प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड ओवर टू यू मैम. You are mute. Kindly unmute. Yes. Namaste, and thank you so much for bringing me on this platform once again. Namaste, Jai Jinendra to all of you. जय जिनेंद्र. आपने बड़ी सुंदर तरीके से ध्वनि के बारे में बताया, and thank you for that introduction. Yes, sound, the future of medicine. और ये हम इसलिए कह सकते हैं because I have worked with sound on critically ill patients in the departments of oncology and also various other diseases. जहाँ पे medicine ज़्यादा मदद नहीं कर पाता है, वहाँ पे something which the universe has given that can be used. वो है sound. So on that particular note, I welcome all of you with a namaste. The divinity in me welcomes the divinity in you. हमारे अंदर, सबके अंदर एक ऊर्जा होती है और वो ऊर्जा अलग प्रकार की होती है हर एक इंसान में. आपने सुना होगा किसी का सुर कुछ और होता है, किसी और का सुर कुछ और होता है, बट सुर तो सुर है. एंड दैट इज द ब्यूटिफुल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो हमें कुदरत ने दिया है, भगवान ने दी है. सो साउंड, जब बच्चा पैदा होता है, द टाइम द चाइल्ड इज कंसीव्ड, पैदा नहीं हुआ है, इट्स बीन कंसीव्ड, तो सबसे पहला ऑर्गन जो बनना शुरू होता है इन द फॉर्म ऑफ एन एक्सटर्नल बॉडी इज द ईयर, कान, कर्ण. और जब इंसान जाने पे होता है तब सबसे लास्ट दे लूज ऑन देयर लिसनिंग, सुनने की क्षमता जाती है. दैट मीन्स द फर्स्ट टू कम इज द ईयर, दैट इज लिसनिंग, एंड द लास्ट टू डाई इज द ईयर. तो ये दोनों कानों के बीच में ही अपनी पूरी दुनिया चलती है. और ये दो कानों के बीच में हमारा मस्तिष्क है, द ब्रेन. द ब्रेन इज ओनली टेकिंग ऑल दोज साउंड्स एंड वाइब्रेशंस that it is receiving from the environment, and from the environment what it takes is what is created in the mind. किसी को किसी की आवाज मधुर लगती है, किसी को कर्कश लगती है, वही आवाज. किसी को किसी का बोलना अच्छा लगता है, किसी को किसी का बोलना अच्छा नहीं लगता है. Same person, same voice, but the perception which the person holds with regards to that sound, to that note, is what creates a belief about that person. अब जब अपना बच्चा रोता है तो आवाज पता चलती है, द मदर रन्स. पड़ोसी को सर दर्द होता है, राइट? सो दैट इज द डिफरेंस ऑफ साउंड, बिकॉज साउंड कनेक्ट्स क्लोजली टू आवर इमोशनल बीइंग. साउंड क्रिएट्स रिलेशनशिप्स बिटवीन इन द हार्मनी बिटवीन टू पीपल. जब दो इंसान बात करते हैं, आपका कम्युनिकेशन जब हो रहा है, वो सुर से हो रहा है, वो आवाज से हो रहा है. और आपने सुना होगा कोई लोग एकदम ऊंचे सुर में बोलते तो हमें लगता है बस हमें और नहीं सुनना है, और कोई लोग जब बोलते तो लगता है बोलते जाओ, हमें सुनना अच्छा लगता है. सो साउंड इज आवर लाइफ. जैसे सबसे पहले हम डॉक्टर के पास अगर जाते हैं तो डॉक्टर स्टेथोस्कोप लगा के सबसे पहले अपने हार्ट बीट चेक करते हैं, द साउंड, बिकॉज साउंड इज लाइफ. अगर हार्ट बीट में कुछ प्रॉब्लम है, इट इज नॉट इन द प्रॉपर रिदम, तो कुछ ना कुछ है जहां पे अटेंशन देना है. So the simple thing as if we understand that sound creates our life, and if we don't use it in the right way, we can disrupt it. It can become a noise. तो जब हम sound की बात करते हैं, it is of two types: sound which is musical, noise which is disruptive. So we have to choose what is that notation I have to speak at. Because words have their vibrations, words have that sound. So जब इंसान कभी कुछ बोलता है, गुस्से में जब बात करते हैं, तो अपने आप वॉल्यूम बढ़ जाता है, अपने आप पिच हाई हो जाता है. And when we are peaceful and calm, composed, we are very mindful, then we are relaxed. The volume will not be high, it will be soothing to hear. So sound, the first instrument which we have is our throat. We have to be very careful about the usage of this instrument.
तो साउंड की जब भी मैं बात करती हूँ सबसे पहले कहती हूँ, वेदर इट इज इन माई पेरेंटिंग वर्कशॉप्स और लाइफ कोचिंग, लाइफ स्किल्स, जो भी वर्कशॉप्स लेती हूँ उसमें सबसे पहले मैं यही बताती हूँ, what is your sound towards yourself and others. If it is in harmony, that means you are on the right path of creating peace and development. सिर्फ growth नहीं, development. But if there is a disharmony in your voice itself, that means you are thinking something, you are speaking something else, your emotional quotient is not in harmony, then you're going to be in trouble. Now, let me give you a simple example. When a husband and wife are having a fight, nobody is listening. Neighbors are listening, but amongst both of them, nobody is listening. But the volumes are very high. So we have to understand the power of sound. Sound is a very, very powerful instrument. It can make your life or it can mar your life. So sound, which that very important in the sense is the body, अपने body के अंदर क्या हो रहा है वो भी एक sound है, और जो हम बाहर देते हैं दुनिया को वो भी एक sound है. दोनों को हार्मनी में रखना बहुत जरूरी है. So today I'm going to talk about sound as medicine, how sound can be used as medicine, how I have used sound as medicine, how you can use sound as medicine, and how you can get trained into understanding sound. So before I start, let us quieten our mind. Then I will talk about how our mind works, how we go into a zone of being calm, and how we can activate ourselves to becoming more powerful than what we are in the right sense. So before I start, I would welcome all of you on this journey with sound, and we start with the first process. Now this session is going to be experiential. मैं थोड़ा बताऊंगी, थोड़ा experience करेंगे, and then if you have any questions at the end of it, we will have a Q&A. But I would request all of you to stay on mute when we are doing the processes. So now, I would request all of you to just sit very calmly with your spine erect. आप सीधा बैठ सकते थे सीधा, अगर आप नहीं बैठ सकते हो सीधा, take a support, no problem. But just be comfortable and close your eyes and अपनी सांस पे ध्यान रखना है. विचार आएंगे, no problem. That is very normal. विचार आएंगे, आने दो, लेकिन उसके अंदर मत घुसना, वो विचारों को जाने देना, just like a movie. Now I will be using my voice in the simple chant of Om. Om. Continue staying focused on your breath. Simple breaths in and out. You can choose to keep your eyes closed so that you don't get distracted by your environment and you stay focused on your breath. Take a deep breath in and slowly open your eyes. You may very slowly choose to open your eyes. जब हम
साउंड देते हैं, now this was a very specific frequency to bring us into a state of calmness immediately. Just within 5 to 6 seconds a person can calm down. जैसे किसी को अगर एंजाइटी इश्यूज है, पैनिक अटैक्स होते हैं, so when we administer these sounds with the frequencies and chant the om along with, or you cannot, if you don't want to chant om also, it is perfect. You can just use this, and when we use these frequencies, that person goes into a state of zero state, शून्य स्थिति. अगर कोई विचार भी आ रहे हैं तो पहले ही इंस्ट्रक्शंस दिया गया है कि उनको मूवी की तरह देखो. Don't get involved in that thought. Don't get lost in those thoughts. Just allow it to pass by. और वैसे करते करते with practice धीरे धीरे पेशेंट्स ऑफ सच इम्पोर्टेंट, जैसे हमारे लाइफ में पीस बहुत जरूरी है, और उनको जब पीस नहीं मिलते हैं और वो पैनिक अटैक्स आने लगते हैं तो हैंडलिंग लाइफ ऑन अ रेगुलर बेसिस बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. सो I use these modalities of sound along with the usage of voice to help them come out of anxiety issues. अभी डिप्रेशन के जो पेशेंट्स है उनके लिए एक अलग नोटेशन होता है. बच्चे होते हैं जो ADHD होते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटीज वाले होते हैं, उनके लिए अलग नोटेशंस होते हैं. अब अलग अलग इसलिए होते हैं क्योंकि हर एक साउंड जो अंदर जाता है अपने अंदर, अब साउंड जाता है सिर्फ कानों से नहीं जा रहा है साउंड, इट गोज थ्रू योर होल बॉडी. अपने बॉडी पे अंदर साउंड सेल्स वाइब्रेट होना शुरू होते हैं, एंड जब सेल्स वाइब्रेट होते हैं तो एक्टिवेशन शुरू हो जाता है. नाउ एज ह्यूमन बीइंग्स, नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग्स, एज लिविंग बीइंग्स, आपने देखा होगा जब कहीं अपने को घाव होता है, कहीं कट हो गया है, अगर हम कुछ भी नहीं करते थोड़े दिनों में वो भर जाता है, राइट? दैट इज हीलिंग. अंदर से कुछ होता है जिसकी वजह से वो ठीक हो जाता है. लेकिन जब हम उसके ऊपर दवाई डालते हैं और वो ऊपर से ठीक होते होते नीचे तक जाता है तो वो होता है ट्रीटमेंट. सो फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड हीलिंग एंड ट्रीटमेंट. हीलिंग का ये हीलिंग का मीनिंग ये होता है कि यू आर एक्टिवेटिंग योर सेल्स टू ब्रिंग अबाउट एन इनसाइड आउट ट्रीटमेंट. वो ट्रीटमेंट बनने लगता है जब वो अंदर से आपको हील करते करते ऊपर तक ठीक करता है, और ट्रीटमेंट वो होता है जो ऊपर से आपको अंदर तक ठीक करता है. सो मॉडर्न मेडिसिन में ट्रीटमेंट दिया जाता है, और जब हम साउंड देते हैं हम हीलिंग के जरिए ट्रीटमेंट करते हैं. नाउ दिस इज द फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग अबाउट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रीटिंग एंड हीलिंग. दूसरी चीज, एवरी लिविंग थिंग, अभी पेड़ है, प्राणी है, इंसान है, सबके अंदर सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म होता है, यानी घाव भरने की क्षमता अपने अंदर ही है. तो हम उसको अगर एक्टिवेट करते हैं सो वी विल बी एबल टू हील आवरसेल्व्स इन अ फास्टर मोड एंड मोर ऐसा मोड में चला जाता है जैसे जो ऑटो मोड है, ऑटोमेटिकली आप ठीक होना शुरू होते हैं. That is the reason most of the people say the miracle हो गया है. So I tell them it is not a miracle. It is a science wherein your own self-healing mechanism has got activated and finally you have been treated with the sound as medicine. जैसे लीना जी ने कहा the future of medicine is sound, तो ये है the future of medicine. जब इंटरवेंशन किसी भी प्रकार का होता है तो वो जैसे मैंने बताया ऊपर से अंदर होता है. दिस इज अ साउंड इंटरवेंशन जो दिखाई नहीं देता है लेकिन एक्टिवेशन होता है एट द सेल्यूलर लेवल. अब मैं ये बताना चाहती हूँ कि ह्यूमन बॉडी, आई एम टॉकिंग अबाउट ह्यूमंस राइट नाउ बिकॉज आई हैव वर्कड विद साउंड ऑन एनिमल्स इन एनिमल हॉस्पिटल्स वर गिवन बाय द मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. वहां पे डॉग्स एंड कैट्स जो होते हैं, कैटल होते हैं, उन पे किया है. पावापुरी में जो सिरोही के पास एक जगह है, वहां 6000 अराउंड काउज है, गाय पूरी गौशाला है, तो वहां पे 5400 काउस को पूरा हीलिंग दिया गया था. एंड उसके अंदर में एक एपिसोड बताना चाहती हूँ. एक 6 दिन का बछड़ा था जो अध मरा था, वो खड़ा ही नहीं हो पाया और उसके अंदर ताकत भी नहीं थी कि वो दूध पी सके. द जॉ वॉज नॉट डेवलप्ड दैट इट कुड ड्रिंक द मिल्क. तो जब मैं वहां पे थी उन्होंने मुझे बुलाया था कि आप एक बार आके देखिए हमारी गौशाला और यहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो इतनी गाय है. और अभी तो उन्होंने एक इंटेंसिव केयर यूनिट भी बनाया है.
So now what happened is the sound was given to this particular calf. 20 minutes तक एक ही नोटेशन दिया गया, और जब वो नोटेशन दिया गया तो पता चला कि थोड़ी सी हलचल हो रही है, बल्कि खड़ा नहीं हुआ था बछड़ा, तब हलचल हो रही है। फिर मैंने कहा कि इसको आधा घंटा हम छोड़ देते हैं, और बाकी के गायों को जो थे, इतनी सारी गायें थी, उनके सब अलग अलग वाड़ा होते हैं, इतने सब गायों को दे के फिर से इसके पास आएंगे, तब तक इसको देखते हैं कि इसका क्या इफेक्ट हुआ है। तो जब मैं दूसरे वाड़ा में गई थी और वहां पे नील गाय भी थी उनके पास, तो वहां पे जब साउंड दे रही थी, इट वॉज अ मिरेकल कि वो जो लेडी उसको संभाल रही थी, ग्वालन जो संभाल रही थी, वो बछड़ा भागते हुए आया और उसने कहा कि ये बछड़ा खड़ा हो गया है और अब ये भाग रहा है। 6 दिन से जो बछड़ा पैदा होने तक खड़ा भी नहीं हो पाया, वो भागने लगा, और फिर उसने दूध भी पिया, और आज वो बड़ी गाय बन गई है और उसको दूसरे वाड़ा में शिफ्ट भी किया है। ये पूरा वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे है, और उसका पूरा टेस्टिमोनी भी दिया गया, उस ग्वाले ने भी दिया, और वो ग्वालन जो बछड़ा लेके आई थी उसका भी वीडियो है। तो हाउ डिड दिस हैपन? उन्होंने कहा आपने जादू किया। मैंने कहा जादू नहीं किया, इस बछड़े का सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म एक्टिवेट किया गया है। साउंड जब होता है, बॉडी में कंपन होती है, और उस कंपन से हमारे बॉडी के अंदर जो भी हलचल होनी चाहिए, जो थम गई है, वो हलचल होती है, और ऐसे सडनली जर्क से बॉडी के अंदर से वो रिलीज होती है एनर्जी, और हम ठीक हो जाते हैं। ऐसे ही देखा गया है हॉस्पिटल्स में, सिंगापुर, मलेशिया, अलग अलग कंट्रीज में जहाँ पे मैं काम करती थी, वहां पे भी ऐसे देखा गया। वो कहते थे मिरेकल लेडी फ्रॉम इंडिया, तो मैं कहती थी हमारे हिंदुस्तान में ये तो हजारों सालों से मंदिर में घंटी थी, और वो घंटा इंसान के दिमाग को, मस्तिष्क को शांत करने के लिए ही था। उसका साइंटिफिक रीजन है, वो ही साइंटिफिक रीजन मैं यूज कर रही हूँ मेडिकली, और बता रही हूँ कि कैसे साउंड कैन हेल्प ब्रिंग अबाउट जॉयस लिविंग इन ऑल लिविंग बीइंग्स। मैं नहीं कह सकती खाली प्राणी के लिए, खाली हमारे ह्यूमंस के लिए है, प्राणियों के लिए, पेड़ के लिए, और ह्यूमंस ऑफ कोर्स है ही। तो ऑफ कोर्स नाउ आई वर्क मेजरली, काफी सारे कैंसर पेशेंट्स अब मेरे साथ में है जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है विद साउंड, हीलिंग एंड ट्रीटमेंट विद साउंड साथ में चल रहा है अब। नाउ मैं कभी ये नहीं कहूंगी कि आपको ट्रीटमेंट बंद करना है, मेडिकल जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट है बंद नहीं करना है, ये कॉम्प्लीमेंट्री है। आप अपने कीमो, इरिगेशन, रेडिएशन जो भी कर रहे हो करो। साउंड को जब साथ में लेते हैं तो जो जिसको 6 कीमो लगते थे उसको 3 में ठीक हो गए। जो केस रिलैप्स के थे उन्होंने कहा कि अब तो लाइक यू हैव अ फ्यू डेज टू लिव, फ्यू मंथ्स टू लिव। ऐसे बंदा आज 5 साल हो गए मजे से जी रहा है, उसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी हो गया था। तो देयर आर वेरियस टेस्टिमोनीज इन द बुक पावर ऑफ साउंड, जिसको खिताब दिया गया था बून टू मैनकाइंड। ये बेस्ट सेलर बनी है, इसको काफी सारे अवार्ड्स भी मिले हैं, और प्रणब मुखर्जी जब वो प्रेसिडेंट थे तब उन्होंने कहा था, ये किताब उन्होंने एक रात में पढ़ी और कहा कि दिस इज अ बोन टू मैनकाइंड। तो ये बोन टू मैनकाइंड अपनी संस्कृति की धरोहर है। आई एम रिवाइविंग दैट, of course adding my research and reviving that, because joyous living with the power of sound is the mission of Dr. Sujata Singh। एकदम सिंपल एक ही स्टेटमेंट में। और जब हम जॉयस लिविंग कहते हैं तो वासुदैव कुटुंबकम आ ही गया है। कोई और प्राणी दुखी होगा तो हम खुश कैसे हो सकते हैं? इसीलिए एनिमल्स को भी इंक्लूड किया, इसलिए प्लांट्स को भी इंक्लूड किया, तो सबका रिसर्च चलता गया। एंड आई कुड गो इनटू दिस, जैसे बताया गया, आई फ्रॉम अ बैकग्राउंड ऑफ कॉर्पोरेट, आई एम एन एमबीए, तो आपको लगता होगा ये कनेक्शन कैसे हुआ। आई एम अ 4th जनरेशन म्यूजिशियन, और म्यूजिक हमेशा मुझे बहुत सुकून देता था। मैं हमेशा सोचती, जब राग मालकून सुनती हूँ तो मेरे थॉट प्रोसेस ऐसे होते हैं, राग यमन सुनती हूँ तो ये होता है, डीमपलासी सुनती हूँ तो ये होता है। सो आई रिसर्च ऑन ऑल द रागास, और फिर उसके साथ कनेक्ट में क्या, क्योंकि हर कोई तो म्यूजिक नहीं सीख सकता है, तो उसके लिए क्या सिंपल बनाया जा सकता है। तब मैंने फाइंड आउट किया कि उसके नोटेशंस, उसको पिकअप करो। म्यूजिक थेरेपी कैन very specific notations when used on the human body to cure diseases is the simplest method is sound। तो वो साउंड जब मैंने बताया कि ये नोटेशन से जब हम ये करते हैं तो ये चीज हमें मिलती है, दिस इज द आउटकम। और जब ये रिसर्च सब लोगों ने देखा, इनफैक्ट व्हेन इट वेंट टू द वेरियस यूनिवर्सिटीज, तो तब मुझे डॉक्टरेट मिला, एंड फाइनली कैम्ब्रिज से डीलिट मिला इन म्यूजिकल आर्ट्स। Now, जब ये DLIT मिला, it was a big responsibility because we all know DLIT is the highest degree a person can earn,
आइंस्टाइन को भी दिया गया था. So when that is there, it means that we need to give back to the world in the simplest form. कोई भी चीज जब कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है तो हम डर जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर वो थॉट आता है कि अरे यार ये तो इतना कॉम्प्लिकेटेड है, कैसे करेंगे. लेकिन ये जो भी कॉम्प्लिकेटेड था इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, क्योंकि अक्सर लोग सोचते हैं जितना कॉम्प्लिकेटेड होगा उतना इंटेलिजेंट दिखेंगे. आई वुड से जितना कॉम्प्लिकेटेड को सिंपल बनाओगे उतने आप इंटेलिजेंट हो. तो इसीलिए द सिंपलेस्ट वे ऑफ लाइफ, ओम भी तो कितना सिंपल है, तो उतना सिंपल हम क्यों नहीं हो सकते हैं. सो ऑल द साउंड नोटेशंस जितने भी मैं यूज करती हूँ सिंपलेस्ट फॉर्म, और मेरे स्टूडेंट्स तो पूरे वर्ल्ड में है. वो लोग, कोई तो ओम का खाली चैंट पता है उनको, मोस्ट ऑफ द काफी सारे फॉरेनर्स है उनको तो पता नहीं, वो बोलते हैं आप चैंट करो, हम वैसे का वैसा चैंट करेंगे. वो सब कुछ सीखते हैं. तो हम ऐसी धरती से आते हैं जहाँ पे अपने पास धरोहर है, और जब इंडियन सीखते हैं मुझे लगता है जैसे अपनी चीज अपने घर में है और वो आगे लोगों को बांटे. तो जब मैं ट्रेनिंग्स लेती हूँ साउंड की, 3 लेवल्स में ये ट्रेनिंग्स होती है. एक होता है सेल्फ हीलिंग, क्योंकि जब तक हम खुद ठीक नहीं रहेंगे दूसरों को क्या हील करेंगे. सो रूल नंबर 1, खुद को हील करना बहुत जरूरी है. रूल नंबर 2, जब आप ठीक हो तभी तो आप दूसरों को खुशियां बांट सकोगे. तो अगर आप बांटने लायक हुए तो क्यों ना बांटो. और तीसरी चीज, जब आप प्रोफेशनल साउंड हीलर्स बन जाते हो, सर्टिफाइड हो जाते हो, तो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई. यू विल हैव टू हेल्प पीपल, बिकॉज दैट इज द मिशन दैट वी आर वर्किंग ऑन. द वर्ल्ड नीड्स टू बी हैप्पी, एंड व्हेन द वर्ल्ड इज हैप्पी वी आर हैप्पी. क्योंकि अपनी जिंदगी और कुछ नहीं है, अपना ही दर्पण है. हम जितना देंगे वही हम पाएंगे. साउंड, जब हम साउंड आवाज करते हैं वो अपने ही कानों में सुनाई देता है, सामने वाले के कान में सुनता है, अपने कानों में भी सुनता है. जो हमें सुनना अच्छा नहीं लगता हम दूसरों को कैसे बोल सकते हैं. सो ऑलवेज टेल द वर्ड्स विच यू वांट टू हियर टू अदर्स. सो वर्ड्स ऑफ एप्रिसिएशन. तो एप्रिसिएशन अगर करना है तो दिल से करना है, तो आपको हार्ट चक्र पे काम करना है. अगर आपको कुछ सोचना है, कुछ डिसीजन लेना है, तो आपको आजना चक्र पे काम करना है. ये दोनों चक्र पे काम करोगे तो अपने आप अपनी ध्वनि अच्छी होगी, आपके शब्द अच्छे होंगे, एंड यू विल बी एबल टू बी इन द राइट जोन. तो इसीलिए सर्टेन टिप्स आई विल बी गिविंग इन दिस पर्टिकुलर टॉक, ताकि आप जब सोचो कि आपने क्या सीखा, वर्कशॉप्स में आना है, यू आर ऑलमोस्ट वेलकम. लेकिन अभी टॉक में आपने क्या सीखा है, मैं आपको सिंपल टेक्निक्स बताने वाली हूँ जो आप फॉलो कर सकते हो. तो क्यों ना आज हम अपने एनर्जी बॉडी को क्लेंस करें, क्योंकि एनर्जी बॉडी अगर अपनी क्लेंस्ड है, फिजिकल बॉडी डिटॉक्सिफाइड है, तो अपने आप अपने सोच, विचार, कर्म सब एकदम अच्छे हो जाएंगे. स्वच्छ भारत की बात करते हैं, क्यों नहीं हम पहले स्वच्छ हो जाए इनसाइड आउट, ताकि हम अपने आप स्वच्छता बिखेर सके, अपने आप स्वच्छता रेडिएट कर सके. तो इसके लिए दूसरा एक्सपीरियंशियल अब होने वाला है, जिसके अंदर हम वर्क ऑफ इनर क्लेंसिंग, एनर्जी क्लेंसिंग का काम करेंगे. अभी जिनको ज्यादा जानना है इसके बारे में, आप प्लीज किताब पावर ऑफ साउंड पढ़ सकते हो, बिकॉज ये काफी बड़ा है, होल टॉपिक इज वेरी बिग. तो जितना मैं कवर अप कर सकती हूँ, जितने टिप्स दे सकती हूँ उतना देते जाऊंगी. तो सबसे पहले जब हम इनर क्लेंसिंग करते हैं तो हम अपने चक्रास पे फोकस करते हैं. जिन्हें चक्रास नहीं पता है प्लीज डोंट वरी, क्योंकि अगर मैं चक्रास की बात करूंगी तो अनदर 1 hour. सो चक्रास का नहीं पता है तो आप अपने हार्ट पे फोकस कीजिए, सेंटर ऑफ द हार्ट. ओके, ओनली फोकस ऑन दैट, एंड अपने सांस पे ध्यान दीजिए, एंड कीप लिसनिंग टू माय चैंट. आई विल बी यूजिंग माय वॉइस एज वेल एज द नोटेशन ऑफ द साउंड. 2 चीज साथ में होने वाली है. सो आई होप यू एंजॉय दिस एंड यू विल बी एबल टू डू दिस इनर क्लेंजिंग. तो जब अपना सेशन पूरा होगा तब कहोगे मेरा एक तो हीलिंग हो गया है, एक मैं आराम से सो सकूं, मैं अच्छे से सोच सकूं, मेरी ध्वनि अच्छी हो और मेरे आसपास की जीवन सुखमय हो. सो इसीलिए अब हम शुरू करते हैं ऑफ इनर क्लेंसिंग. तो जिसको चक्रास नहीं पता है प्लीज डोंट वरी, फोकस ऑन योर हार्ट एंड फोकस ऑन योर ब्रेथ. ओके, तो सबसे पहले हम अपने आप को वेलकम करते हैं, हम तैयारी करते हैं वेलकम करने के लिए अपने एनर्जीज को. हम जो दिखते हैं उसके अलावा काफी कुछ है, और जिससे हमारी दिनचर्या चलती है वो भी काफी कुछ है. तो वो काफी कुछ को हम पहले अपने अंदर एक्सेप्टेंस मोड में लाना शुरू करते हैं. सो वी विल जस्ट जॉइन आवर हैंड्स, टेक अ डीप ब्रेथ इन.
नमस्ते पोजीशन, ताकि अपने राइट एंड लेफ्ट ब्रेन पूरे यूनिफाइड पोजीशन में आ जाए, काम हो जाए। और एक डीप ब्रेथ लीजिए एंड ब्रीथ आउट। अगेन अ डीप ब्रेथ इन, you can breathe out through your mouth. Once more a deep breath in, breathe out. Now sit in the Gyan Mudra. Gyan Mudra है इंडेक्स फिंगर को, थंब को जेंटली टच करना है। ओके, स्टे फोकस्ड ऑन योर ब्रेथ। Gently breathe in and breathe out. सबसे पहले आप अपने आप को कहिए, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम पावरफुल, आई एम हार्मोनियस एंड आई एम लवेबल, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ इन एंड आउट। Om Lam Namah. Om Vam Namah. Om Ram Namah. Om Yam Namah. Om Ham Namah. Om Ham Namah. Om Yam Namah. Om Ram Namah. Om Vam Namah. Om Lam Namah. Chidanandarupa Shivoham Shivoham. Chidanandarupa
शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहम् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय शान्ति शान्ति Take a deep breath in. Allow this vibration to flow in your whole body, vibrating into every cell. Just be aware of your presence. Relax your whole body and feel the peace in your mind, in your heart, and in your physical body. Choosing to let go all the unnecessary to make place for happiness, peace, and prosperity. Tell yourself, I'm strong, I'm powerful, I'm lovable, I'm harmonious. I love myself at the mind, body, and the spirit levels. And I radiate the same to my environment. Take a deep breath in. Bring your hands together in the Namaste position, bringing the unison of you and your inner divinity. Bow your head to the Namaste position, welcoming the divine vibrations in your mind, body, and soul. Bring the happiest moment of your life and allow that emotion of happiness settle in your heart chakra. Bring a smile on your face, and you may choose to slowly open your eyes.
Very slowly, gently come back. And once you have opened your eyes, you can come on your videos. It often takes time for people to come out of this trance. So we give you some time. Take a deep breath in and breathe out. In the state of deep relaxation, bring your awareness back to the physical world and your consciousness to the environment. Very gently come back. And if you have been lying down, please try to sit up by turning onto your left. And if you are seated, you can choose to come back on your videos. Thank you for that lovely comment. And I'm glad you enjoyed it. So now slowly come back. And I guess all of you are back. Drink some water if you need to. And now it's time for our Q&A. So over to Leena ji. It was really an amazing experience. I felt very divine moment during the meditation, and I feel very calm and little bit of sedative. Yeah, but it was fantastic. यूं लगा कि 2-4 मिनट की इस मेडिटेशन में जैसे कि पूरे दिन का थकान चला गया मेरा. Yeah, I feel so light and fresh. मुझे लगता है सभी लोग अपनी वीडियोस ऑन करें और इट्स टाइम फॉर क्वेश्चन एंड आंसर नाउ. बहुत अच्छी बातें आज आपने बताई है सुजाता जी. खास करके जो हीलिंग एंड ट्रीटिंग का जो डिफरेंस आपने बताया वो भी बहुत अच्छा था, डिफरेंट था मेरे लिए भी. और साउंड का काफी सारा आज आपने अच्छे से नॉलेज दिया. मैं एक बार देखना चाहूंगी कि आप किस इंस्ट्रूमेंट को बजा रहे थे. कैन यू प्लीज शो अस? Yeah, I was playing 4 instruments, 4 notations. अच्छा. Generally, I play 7 notations, but because many of them may not be knowing also about the chakras, I was chanting along with it. तो जो 4 notations है मैं ऐसे बजा रही थी. ये DSS bowls है, ये bowls जो है, और इसके mallet यह है. इस आवाज से. और दूसरी आवाज थी दूसरे नोटेशन की जो आप सुन रहे हो. हाँ, तो ये कॉम्बिनेशंस में है. 4 सुर लिए गए और उसके कॉम्बिनेशंस में बजाया. इस बॉल को क्या बोलते हैं? बुद्धा बॉल बोलते हैं. These are Himalayan singing bowls. Himalayan singing bowls. और ये bowls जो notations आप सुन रहे हैं ये ट्रीटमेंट में यूज करती हूँ पेशेंट्स पे. जैसे मैंने कहा कि ऑन्कोलॉजी में कैंसर पेशेंट्स इतने सारे हैं, टर्मिनली इल पेशेंट्स है, तो उनके लिए ये वाले बोल्स यूज करते हैं क्योंकि इसका रेसोनेंस और रेवर्बरेशंस बॉडी के अंदर जो होते हैं वो अलाउ करता है सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म को एक्टिवेट करने के लिए. रिलैक्सेशन के लिए अलग बोल्स होते हैं. अच्छा. तो आज हमने तो क्लेंजिंग किया है अपने अंदर से.
सो इसीलिए हमने मंत्रा चैंट्स के साथ में साउंड का यूज किया है। तो आपने नोट किया था कि वॉइस और वाइब्रेशन साथ में जाके एक अवेयरनेस क्रिएट कर रहा था। वो वाइब्रेशन से मुझे और तो समझ नहीं आया, और मुझे लगा कि शायद मेरे सेल्स एक्टिवेट हुए होंगे, क्योंकि मैं जो मेरे ब्लड का फ्लो जो जा रहा था, सो आई वाज फीलिंग माय पल्पिटेशन ड्यूरिंग दिस मेडिटेशन कि ये खून यहाँ से निकल रहा है या क्या, वो पूरा मैं फील कर पा रही थी। यस, उसी को कहते हैं रेवर्बरेशंस। वाइब्रेशन अंदर गया और अंदर उसकी कंपन हो रही थी। हाँ, वो कुछ ऐसा फील हुआ हाँ, मुझे, शायद और लोग भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि मुझे हुआ तो काफी सारे लोगों को हुआ ही होगा। आई एम प्रीटी श्योर। काइंडली अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू कैन आस्क द क्वेश्चन। पर इट वाज फैंटास्टिक। मैं बिल्कुल अच्छे से समझ पा रही हूँ कि ये ट्रीटमेंट में यूज होता होगा। और मैंने सुना है कि जब गाय को दूध के लिए दोते हैं, क्या बोलते हैं हम गुजराती में, ऐसा बोलते कि दोवे छे, गाय ने दोवे छे, हाँ, तो मंत्रास का चैंटिंग का रिकॉर्ड बजता है तो गाय ज्यादा दूध देती है, देते हैं। ऐसा साइंटिफिकली प्रूव हुआ है। तो यस, आपने सही बताया कि हमारी ही संस्कृति है, हमारी ही धरोहर है, पर हम जानते नहीं। वो कस्तूरी मृग जैसी वाली बात हो गई कि हमारे अंदर है, हमारे पास है, पर हम जानते नहीं है। So thank you so much for making us aware about our own, riches. हेरिटेज, कल्चर। और दूसरी चीज ये है कि जब ऐसे काफी सारे टेस्टिमोनियल्स मेरे यूट्यूब वीडियोस पे आप देखोगे कैसे पेशेंट्स ठीक हुए हैं, जहाँ पे कुछ नहीं हो पा रहा था वहां पे साउंड यूज करके कैसे हुआ है। तो व्हेन यू सी दैट यू विल कम टू नो कि हॉस्पिटल में, जैसे एक था सिंगापुर हॉस्पिटल में हुआ था ये, जब वो पेशेंट इतने दिनों 28 डेज तक पैरालिटिक पेशेंट में कुछ हो नहीं रहा था, ही वाज 80+, तो इसीलिए डॉक्टर्स भी ज्यादा कुछ एडमिनिस्टर नहीं कर पाते थे बिकॉज कितना इंड्यूस कर सकते हैं। तो तब उनकी ग्रैंड डॉटर जो जिसने साउंड सीखा मुझसे, तो उसने उसने सेल्फ हीलिंग ही किया था, खुद को हीलिंग, तो उसको इतना फर्क पड़ा था। तो उसने कहा क्यों नहीं आप इंडिया से आओ और मेरे ग्रैंडपा को एक बार देख लो। तो जब मैं गई वहां पे डे 1 पे किया, तो उनको तो फिजियोथेरेपी रूम में शिफ्ट करना पड़ा बिकॉज ही वाज इन द डिफरेंट रूम वेयर ही वाज इंटेंसिव केयर हो रही थी उनकी। तो वहां पे लेके गए और वहां पे फर्स्ट दिन दिया तो कुछ उनका कुछ हिलना तुलना था नहीं, तो मुझे भी नहीं समझा कि क्या हो रहा है। सेकेंड डे जब मैं गई तब मैंने देखा कि उनकी बेड तो खाली थी। तो मुझे लगा पता नहीं अब क्या हुआ है। जनरली अपने विचार में तो होता है कि ही वाज सो ओल्ड, पता नहीं क्या हुआ है। तो जब मैंने नर्स को पूछा कि वो कहाँ गए, तो उसने हंसते हुए कहा कि आप वो कॉर्नर में देख रहे हो जो बात कर रहे हैं चेयर पे बैठ के, वो वही है। और वो अपने ग्रैंड डॉटर से बात कर रहे थे और जोर से आवाज में बात कर रहे थे और अपने सब इमोशंस बता रहे थे। तो ये देख के उन्होंने कहा कि आपने क्या किया, हमने इतना सब किया लेकिन वो कुछ भी हो नहीं रहा था असर। आपने एक दिन साउंड दिया और नेक्स्ट डे इनका तो काफी कुछ ठीक लग रहा है, बोलने लगे हैं, बैठ गए हैं। सबसे बड़ी चीज तो ये है कि वो बैठ गए हैं। तो फिर मैंने उनको कहा कि ये साउंड इज वर्क लाइक दिस, उनको सब कुछ समझाया। तो उन्होंने कहा यस दिस इज मेडिसिन, this is a different type of medicine which probably we always had, we are not having much knowledge about the scientific aspects। तो ऐसे करते करते काफी सारे ऐसे टेस्टिमोनियल्स है। आप बुक पढ़ोगे पावर ऑफ साउंड तो आपको काफी टेस्टिमोनियल्स मिलेंगे। ऑल्सो ऑन माय यूट्यूब चैनल काफी सारे टेस्टिमोनियल्स है। अभी फिलहाल में जैसे लास्ट टाइम अपना सेशन हुआ तो एक बंदे ने बताया था कैसे उसकी हाँ, मदर जो इतनी क्रिटिकल थी वो ठीक हो गई, जबकि कुछ दवाइयां काम नहीं आ, क्योंकि मेडिसिन जो है वो अपने को काम करती है एक हद तक। उसके बाद हमें कुछ ऐसे इंक्लूसिव मेडिटेशन में जाना पड़ता है या मेडिकेशन में जाना पड़ता है जहां पे अपने अंदर से कुछ ट्रीटमेंट शुरू हो जाए, सेल्फ एक्टिवेशन शुरू हो जाए, तो फिर वो जो भी प्रॉब्लम्स है वो धीरे धीरे सॉल्व होने लगता है। तो इतना जब पावरफुल अपने पास कुछ चीज है तो उसको इस्तेमाल करना तो अपना धर्म और अपना कर्म बनता है। बिल्कुल। और जब किसी का मूड खराब होता है तो भी हल्का सा वो म्यूजिक बजा लिया तो कितना मूड फ्रेश हो जाता है। तो ये तो बिल्कुल बिल्कुल सही बिल्कुल। बात है, सही बात है। हाँ जी, किसी को सवाल है और होना ही चाहिए, क्योंकि इतना अच्छा समझाया है इन्होंने। तो सवाल पूछ के और क्लैरिटी ले सकते हैं हम इनसे।
आज हमारे प्लेटफॉर्म पे सुजाता जी सेकंड टाइम आए हैं। मैं कोशिश करूं कि थर्ड टाइम भी आए, पर नहीं भी आ सकते हैं तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा उनका बेनिफिट लीजिए। मैं सुधा शाह जी को अनम्यूट करने के लिए बोलूंगी, क्योंकि शी सिम्स वेरी एक्साइटेड और लगता है कि कुछ पूछने जा रही है। तो अनम्यूट योरसेल्फ। सुधा बेन अनम्यूट કરીને પૂછો, તમે કંઈક પૂછવા માંગતા હતા, I think. Okay, she's all right. किसी और को બહુ સરસ સેશન છે. શિવમ વિશે થોડું ડિટેલમાં જાણવું હતું મેમ, પણ અત્યારે કન્ટિન્યુ કરો. ઓકે Okay, okay. She will contact you Hello, afterwards. અવાજ આવે? हाँ जी, હા, आवाज તમારું આવે. શિવમનું મ્યુઝિક બહુ સરસ છે મેમ. એના I know. વિશે જો તમારી પાસે ડિટેલમાં હોય તો અમને બધાને મોકલો. मुझे जरूर, आपके शिवोहम Okay, thank you. मुझे इसलिए टच किया कि आई बीन टू कैलाश मानसरोवर इन 2011। तो जब आपका शिवोहम चला तो आई वाज देयर एट कैलाश मानसरोवर। तब मैं उधर पहुंच गई थी। और मुझे एक बात और लगी, जब आप मंत्रास का चैंटिंग कर रहे थे, your voice seems little different than what you are talking with us right now. So वो क्या चीज है? Now, this frankly speaking, जब मैं mantra chanting करती हूँ, because I am also a mantra chanting expert, I use mantras, my voice to heal people. तो जब मैं voice use करती हूँ तो even I don't realize I go into the trance, और जो हमको voice चाहिए होती है वो आना शुरू हो जाता है, बिकॉज सातों सुर अपने वॉइस में होना बहुत जरूरी है जब मंत्र चैंट करते हैं। जैसे मैं आपको बताती हूँ कि जब अपने मंत्र ऋग्वेदिक टाइम्स में जो मंत्र होते थे, अगर मैं एक चैंट करके बताती हूँ, अपने पास समय है तो 1 मिनट का एक शॉर्ट मंत्र है, हाँ जी, तो इफ आई जस्ट चैंट एंड देन आई विल चैंट अनदर मंत्र, यू विल कम टू नो द डिफरेंस ऑफ व्हाट मंत्र चैंटिंग इज, व्हाट साउंड, हाउ पावरफुल इट इज। अभी एक मंत्र जो मैं बोलने वाली हूँ वो है, इट इज इन द ओनली इन द 4 नोटेशंस। ओके, ओम यं शैव समुपासते शिवति ब्रह्मेति वेदान्तिनो बौद्धाः बुद्धैति प्रमाणपटवः कर्तैति नैयायिकाः अर्हन्नित्यत जैन शासनतकाः कर्मैति मीमांसका सोऽयं वो विदधातु वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथो विभुः यों तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयज्ञतिरशक्तिधरः स्वदाम्नाम् अन्यः सरस्त शरणः शरणत्तगादि प्राणा नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। Now this mantra is chanted, it gives more power. जब आप सुनते हो, it gives you an inclusiveness, it gives you a sense of connectedness and the power of unison. और जब दूसरा मंत्र चैंट करूंगी तो आपको लगेगा आप एकांत में कहीं बैठे हो, ये आपको ये डिफरेंस पता चलेगा। ओके, ओम सच्चिदानंद परब्रह्मा पुरुषोत्तमा परमात्मा श्री भगवती समेता श्री भगवते नमः। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। अब ये जब मंत्र ऐसा गाया जाता है तो इट बिकम्स अ म्यूजिकल मंत्र चैंटिंग एंड दिस पुट्स अ पर्सन, जैसे एकांत में आप कहीं हो, आप अपने आप में लीन हो जाते हो। सो ऐसे मंत्र के अलग अलग चैंट्स होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं, उनका प्रोनाउंसिएशन एकदम परफेक्ट होना है एंड आपका ब्रेथ वर्क राइट होना है। एंड व्हेन वी डू इट विद साउंड, इट हैज टू बी इन यूनिसन, तो ही वो मधुर संगीत बनेगा, नहीं तो वो कर्कश आवाज बनेगी, नॉइज बनेगा। सो वी हैव टू यूज आवर वॉइस इन द राइट फॉर्म
And it is not about good voice, bad voice. It is about how you use it. Absolutely, yes. एक सवाल आया है चैट बॉक्स में, which time is better for chanting healing mantra? Healing mantra जो है, सबसे पहले you will have to know how to chant. सिर्फ मंत्र बोलने से नहीं होता है. इसीलिए जब भी लोग मुझे कहते हैं, स्पेशली अपने इंडिया में है ना, एक चीज मैंने नोटिस की है, हमको लगता है कि हम जो सुनते आ रहे हैं वो ठीक है, लेकिन हमें ये भी समझना है कि क्या चीज है वो जो हमको हाईएस्ट बेनिफिट देगा. सो बिफोर यू स्टार्ट चैंटिंग मंत्रा, लर्न टू चैंट मंत्रास सबसे पहले, क्योंकि मंत्रास इज नॉट जस्ट मुंह से बोलने वाला. अपने एपिग्लोटिस कब यूज करना है, अपना ब्रेथ कब अंदर लेना है, कब मंत्र से हवा, मुंह से हवा बाहर निकलनी है. क्योंकि मंत्र जब हम बोलते हैं, अपने अंदर एक झनकार होती है, मन के अंदर तरंग बनना, दैट इज मंत्र. और उस तरंग को सही ढंग से बनाओगे तो ब्यूटीफुल रिपल्स बनेंगे, सर्कुलर रिपल्स बनेंगे. नहीं तो वो एकदम क्या बोलते हैं ऐसे, जैसे डिसरप्टिव रिपल्स बनेंगे. तो इसीलिए मंत्रास कोई भी बोलो, learn to chant that mantra in the right form, in the right way. Again, there are some mantras only for morning, some mantra only for evening. वो भी आपको बराबर समझ के करना है. जैसे अगर हम संध्या मंत्र है, वो हम सुबह तो नहीं बोल सकते, इवन दैट इज अ हीलिंग मंत्र. तो अगर हम जैसे शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय संध्या दीपो नमोस्तुते, संध्या दीपो नमोस्तुते. हमने देखा सुर कैसे चेंज होता है, बिकॉज इट गोज इनटू आवर चक्रास. तो हमें समझना है कि हम कैसे चैंट कर रहे हैं. सो इफ यू आर गोइंग टू यूज योर हीलिंग मंत्रास, अंडरस्टैंड कि वो कैसे बोले जाते हैं. द बेस्ट वे टू डू इट, अगर आपको बोलना नहीं आता है सही, चैंट इट इन योर माइंड. 24/7 आप चैंट कर सकते हो. जब हम बाहर बोलते हैं तो टाइम लागू पड़ता है. तो आंसर टू योर क्वेश्चन इज हीलिंग मंत्रास कैन बी चैंटेड इन योर माइंड एनी पार्ट ऑफ द डे, एनी टाइम, इन अ स्वच्छ प्लेस. अच्छी जगह पे बैठ के करना है. ओके, बस आप कर सकते हो. बट व्हेन यू आर डूइंग इट लाइक हाउ आई वाज चैंटिंग, आपको समय देख के करना है. सो आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन. या वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. मुझे लगता है कि ये मुझे दो बात जाननी है. एक तो आपने बोला कि लर्न टू चैंट मंत्रास, तो वो हम कहाँ से कैसे सीख सकते हैं. और दूसरी बात, ओम इज अ वेरी कॉमन मंत्रा, वेरी शॉर्टेस्ट एंड कॉमन मंत्रा. तो आज हम सबको एटलीस्ट वो सिखा दीजिए कि ओम कैसे बोला जाता है. अभी ओम को कैसे बोलना है मैं सिंपल बेसिक बता सकूंगी, बिकॉज चैंटिंग ओम बाय इटसेल्फ इट्स अ होल वर्कशॉप. आपको लगेगा कि ओम है, Really? It's a whole workshop. It's a big work and एक पूरा चैप्टर है इस बुक में. पावर ऑफ साउंड में एक पूरा चैप्टर ऑन ओम है. इतना पावर है ओम में. तो आप रोज ओम कैसे चैंट कर सकते हो वो मैं आपको बता सकती हूँ. एंड इट इज वेरी इजी, क्योंकि वो स्टार्टिंग है. जब भी आप ओम चैंट करो, आपके हाथ ज्ञान मुद्रा में होना जरूरी है. रूल नंबर 1, ज्ञान मुद्रा. और ज्ञान मुद्रा जब हम करते हैं, कभी भी प्रेस नहीं करना है, हल्का, एकदम हल्का. दूसरी चीज, सर्कल बनना चाहिए, ऐसे नहीं बादाम की तरह नहीं. अपने को अंदर बादाम के जैसे या आंख नैनो जैसे नहीं बनना है. इट हैज टू बी सर्कल, जैसे लीना जी बता रहे हैं, बराबर परफेक्ट. ओके, सर्कल बनाना है और अपने थाइस पे रखना है. शोल्डर्स रिलैक्स रखना है. पहले बॉडी को प्रिपेयर करना है ओम के लिए. ओम का इतना पावर है, बॉडी को प्रिपेयर करना है. और फिर उसके बाद आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए. सोते सोते कभी ओम मत करना, आपको बैठ के ही करना है. रीढ़ की हड्डी सीधी और आपका चिन्ह जो है वो पैरेलल टू अर्थ होना चाहिए. ऊपर भी नहीं, नीचे भी नहीं. ग्राउंड लेवल जो है उसको पैरेलल, सीधा. आप ऐसे ओम करोगे सुर चेंज हो जाएगा, ऐसे करोगे सुर चेंज हो जाएगा. आपको ग्राउंड लेवल, पैरेलल टू द ग्राउंड रखना है. देन नेक्स्ट थिंग, ये प्रिपेयर कर रहे हैं हम बॉडी को. नेक्स्ट थिंग ब्रेथ. तो फिजिकली आप रेडी हो गए हो. नेक्स्ट चीज आपको ब्रेथ रेडी करना है. ब्रेथ रेडी करने के लिए क्या करना है, आपको एक डीप ब्रेथ लेना है और क्यों, क्योंकि अपने बॉडी के अंदर जो टेंशन है उसको बाहर निकालना है. स्टिफनेस जो है वो निकालना है. ये एक्चुअल में हम लोग काफी सारी एक्सरसाइज करते हैं जस्ट बिफोर डूइंग ओम. तो अभी मैं आपको सिंपलेस्ट फॉर्म बता रही हूँ
जो आप कर सकते हो घर में, आप सब प्रैक्टिस कर सकते हो, आप अपने बच्चों को भी सिखा सकते हो। फिर आप डीप ब्रेथ लोगे, 3 बार कीजिए, वेरी गुड, वंस मोर, अब नॉर्मल ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग की भी जरूरत नहीं है, नॉर्मल ब्रीदिंग लीजिए, 2-3 बार नॉर्मल ब्रीथ लीजिए। अब आपकी बॉडी और आपका मन दोनों तैयार है ओम चैंट के लिए। अभी आपको डीप ब्रेथ लेना है, डीप ब्रेथ इन, और अब डीप ब्रेथ यानी आपका पेट बाहर आएगा, ओके, आपको चेस्ट बाहर नहीं लाना है, पेट बाहर लाना है। और अब आप जब सांस छोड़ोगे तो आप ओम बोलोगे, डीप ब्रेथ इन, एक बार और, डीप ब्रेथ इन, फिर आप अपने आंख खोल के आराम से ब्रेथ कर सकते हो, नॉर्मल ब्रीदिंग। You will find a real unison happening between you and yourself, the inner self. ओम का इतना पावर होता है, तो ये भी अगर आप फॉलो करोगे रोज, डू इट, स्टार्ट विथ 2 मिनट्स, क्योंकि सही ढंग से जब हम करते हैं तो काफी वाइब्रेशन से इधर होने लगेंगे आपके ब्रेन में, ऐसे जैसे तरंगे शुरू होने लगेगी। सो डू इट फॉर 2 मिनट्स, बीच में पानी पी लो, फिर और 2 मिनट्स की, फिर और ऐसे घड़ी धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते यू विल कम अप टू 5 मिनट्स, दैट इज परफेक्ट। आपको ज्यादा भी करने की जरूरत नहीं। जैसे ऊ फिर ऊपर जाना है, फिर म बिल्कुल छोटा लेना है ना? ओके। It has to और go like a slide up and then slowly finish that. ओके। और लर्न हाउ वी कैन लर्न टू चैंट मंत्रास, कहीं कुछ ऐसे है क्या यूट्यूब या कुछ भी? Now, और आपके मंत्रास में क्लैरिटी बहुत है, शब्दों की क्लैरिटी बहुत ही है, तो वो भी हम लोग कैसे सीख सकते हैं? mantra chanting by itself is actually एक बहुत बड़ा science है, and because I was learning more of Vedic systems to understand the mantras and the Vedas and the Upanishads and all this, though I'm a Jain, मेरा झुकाव ज्यादा रहा towards mantras, म्यूजिक के हिसाब से शायद, या कुछ ऐसा इंटरेस्ट जागा। सो आपको अगर मंत्र सीखना है या आपको ये पूरा स्पिरिचुअल साइंसेस समझना है, तो यू कैन जॉइन माय वर्कशॉप्स, और वो वर्कशॉप्स आपको एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव फटाफट लेके जाने में मदद होगा। बिकॉज राइट नाउ मंत्रा चैंटिंग एज सच with the science and the physical aspects, I guess right now in India, I don't know, और भी लोग कर रहे होंगे, I have no idea, but to my knowledge it is me who teaches people around the world with regards to how to chant mantras with proper understanding of how it affects the mind, body and spirit. तो आप मेरे वर्कशॉप्स में आ सकते हो, ट्रेनिंग्स होगी, कुछ यूट्यूब चैनल पे अगर मैं डालती हूँ तो वो आप देख सकते हो। आप शिवरात्रि और काफी सारे नवरात्रि के मंत्र वगैरह सब मेरे यूट्यूब पे है, लेकिन जब वो सिखाने का नहीं है, वो खाली सुनने वाले मंत्र हैं, सुनने वाले हैं, तो आप वो सुन सकते हो। और अगर आपको सीखना है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, मेरा वेबसाइट तो लीना जी देने वाले, मेरा नाम ही है .com, तो आप वो देख सकते हो। तो आप काफी कुछ एक्चुअली सीख सकते हो। और अगर आपको शुरुआत करनी है टू अंडरस्टैंड साउंड, सेल्फ हीलिंग, जहाँ पे इनिशिएशन होता है बेसिकली, तो वो आप मार्च में जो वर्कशॉप आ रहा है तो उसमें आप ज्वाइन कर सकते हो, वो तो ऑनलाइन है, लेकिन जो प्रोफेशनल होता है तो वो ऑनलाइन नहीं हो सकता है, तो तभी सब ऑफलाइन वर्कशॉप्स होते हैं, तभी आपको आना होता है। बट टू स्टार्ट विद, शुरुआत करने के लिए आप सेल्फ हीलिंग का वर्कशॉप कर सकते हो। अपना बेसिक मंत्रा, सोल मंत्रा होता है, उसमें आपका इनिशिएशन होता है। सो और हम गुरु शिष्य परंपरा ही फॉलो करते हैं। सो दिस इज हाउ इट गोज। और एक ट्राइब है हमारा, DSS फैमिली है, जहाँ पे पूरे वर्ल्ड से लोग हैं उसके अंदर, तो एक साथ जब जुड़ के जब सीखना शुरू करते हैं तो काफी कुछ सिखा भी जाता है। आप हमें डिटेल शेयर कर दीजिएगा, मुझे दीजिएगा, आई विल फ्लोट इन द ग्रुप फॉर श्योर। एंड
लास्ट टाइम आई एम आस्किंग, किसी को सवाल है तो, नहीं तो फिर नेक्स्ट सेशन रिलीज करते हैं. With your consent, ma'am, I would love to release my next session. Yes, sure. Please go ahead. ओके आज बहुत सारी बातें सुर और आवाज की हुई है, तो नेक्स्ट सेशन उसी के जुड़ाव से है, ट्रिब्यूट टू द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स थ्रू मूवी सॉन्ग्स. बहुत मजा आने वाला है. दोस्तों कहते हैं कि जब से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का प्रयोग संगीत की ध्वनि निकालने के लिए किया जाने लगा, तब से हर संगीतकार ने संगीत को एक नई धुन दी है. म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बिना म्यूजिक अधूरा है. पल भर के लिए सोचिए, अगर म्यूजिक नहीं बजता तो सॉन्ग क्या कर्णप्रिय बन सकता है? पर क्या हमें इन सब की जानकारी है कि कौन से सॉन्ग में कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाया और उसको कैसे बजाते हैं? तो ये सब जानने के लिए हमारे साथ हिंदी इंस्ट्रूमेंट की जानकारी देने के साथ साथ ओल्ड हिंदी सॉन्ग्स भी बजेंगे कि कौन से सॉन्ग में कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया गया है. और ये सब हमें बताने आएंगे वेरी पैशनेट म्यूजिक लवर डॉक्टर तेजस नायक जी. एक तबीब के मुंह से इंस्ट्रूमेंट की पूरी बातें जानना भी एक अपने आप में यूनिक एक्सपीरियंस रहेगा. तो मैं यहाँ जो लोग भी हैं उन सब से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जरूर जुड़िएगा नेक्स्ट एपिसोड में. और नए भी कुछ चेहरे आज मुझे दिखाई देते हैं. ये बिल्कुल फ्री सेशंस चलते हैं फर्स्ट लॉकडाउन से. आज 87th एपिसोड हुआ और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आई एम टारगेटिंग टू कंप्लीट 108 एपिसोड्स. एक वो बोलते हैं ना ज्ञान माला की तरह पूरी एक माला के 108 मनके की बात होने वाली है. तो 108 यानी अभी बहुत कम बच गए हैं. तो जो लोग भी हमसे जुड़ना चाहते हैं प्लीज जुड़िए अपने दोस्तों और फैमिली के साथ. नेक्स्ट सैटरडे जरूर मिलते हैं इंस्ट्रूमेंट की जानकारी के साथ. बहुत अच्छे ओल्ड फिल्मी सॉन्ग्स बजने वाले हैं. इट विल बी वेरी लाइव एंड वाइब्रेंट सेशन. तो प्लीज ज्वाइन विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी. थैंक यू सो मच संगीता जी, सुजाता जी. मेरे पास वाकई में शब्द नहीं है. आप इतने बड़ी पर्सनालिटी हैं, फिर भी 2 बार हमारे लिए टाइम निकाल के हमारे प्लेटफॉर्म पे आए हैं. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. Thank you everyone for joining and sparing your valuable time. Thank you so much. See you all next Saturday. Namaste. God bless. Namaste. Thank you so much. Thank you so much. Namaste. Namaste.